الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ طول قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل لہو میں کھونا تجھے شب رات بھر سونا تجھے دل لہو میں کھونا تجھے شب رات بھر سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور ایک شاعر کہتا ہے مظلوم زمانہ کی حمایت کے لیے ہیں ہم ظلم و تشدد کی بغاوت کے لیے ہیں مظلوم زمانہ کی حمایت کے لیے ہیں ہم ظلم و تشدد کی بغاوت کے لیے ہیں. دنیا کی کچہری میں کبھی حل نہیں ہوں گے کچھ فیصلے اللہ کی عدالت کے لیے ہیں. دنیا کی کچہری میں کبھی حل نہیں ہوں گے کچھ فیصلے اللہ کی عدالت کے لیے ہیں. اور ایک شاعر کہتا ہے زندگی ہر آدمی کی کچھ دنوں کا کھیل ہے وہ دیا اتنا جلے گا جس میں جتنا تیل ہے. اور کون آیا ہے یہاں صدیاں بتانے کے لیے لوگ آتے ہیں یہاں سے لوٹ جانے کے لیے. سب یہیں رہ جائیں گے محلات کیا باغات کیا سب یہیں رہ جائیں گے محلات کیا باغات کیا جسم بھی خاکی ہے خاکی چیز کی اوقات کیا. اور موم جیسے لوگ ہوں یا صورت فولاد ہوں موم جیسے لوگ ہوں یا صورت فولاد ہو ہٹلر ہو نمرود ہو فرعون ہو شداد ہو ہر کسی کو موت کی آغوش میں سونا پڑا. آسماں جیسوں کو بھی زیر زمین ہونا پڑا اور قافلہ سانسوں کا ہر دم سے جدا ہو جائے گا. میں فنا ہو جاؤں گا تو بھی فنا ہو جائے گا. آئیے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اسی کے تحت کچھ باتیں کرنے اور سننے سے قبل ہم اور آپ مل کر اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار ہم غریبوں کے غمگسار حضور اکرم نور مجسم رسول محتشم شفیع امم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جہاں سرور لالا رخاں صبح کائنات کے شمس ضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا روحی فدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ حضرات تھوڑی دیر میری طرف توجہ دیں گے تو بہتر ہوگا. درود پاک پڑھنے کے لیے درود پاک پڑھنے کے لیے میں نے کہا لیکن آواز بلند نہ ہوئی. ایک مرتبہ اور لگا کر کے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مقدس کی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی. اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک. اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے اس کو کم کر دیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے کہتا ہے قل اے محبوب آپ کہیے یوں کہیے اللہم مالک الملک
کہ اللہ ہی مالک ہے تمام ملکوں کا، تمام دنیا کا۔ تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے ملک دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، جسے چاہے بادشاہت دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، جس سے چاہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک یا اللہ تو ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ یہ ترجمہ آپ حضرات جو ہے بار بار سنتے بھی ہوں گے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت ذلت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے بولے ہاتھ میں ہے، مشتاق بھائی، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو انسان کے بگاڑنے سے کسی کا کچھ بگڑے گا نہیں بگڑے گا، کچھ نہیں بگڑے گا۔ انسان سر سے ایڑی تک، ایڑی سے لے کر چوٹی تک زور لگا لے، کسی کا کچھ بال بہکا نہیں کر سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ لوگوں نے بہت زور لگایا مکہ کی سرزمین پر کہ اسلام نہ پھیل سکے، لوگوں نے بہت زور لگایا، لوگ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں تک کر چکے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضرات محترم لوگوں نے بہت زور لگایا، پیچھا بھی کیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، غار ثور میں جب آپ تشریف فرما ہوئے، لوگوں نے پیچھا کیا، غار ثور کے دہانے تک پہنچے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوئی کہ لوگ جو ہے دہانے تک جانے کے باوجود بھی وہاں سے واپس آ گئے، یہ کہہ کر کہ اگر اس میں گئے ہوتے تو یہ مکڑیوں کے جالے نہ ہوتے اور کبوتر انڈا نہ دیتے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیشہ دین اسلام کو پیچھے کرنے کی جو لوگ کوششیں کر رہے تھے، یہ انہیں پتا نہیں کہ یہ دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا ایک سچا دین ہے، اور اللہ چاہتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اور مدینے کی سرزمین پر صرف 10 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں عالم اسلام کا جھنڈا لہرایا، پوری دنیا میں نور اسلام جو ہے روشن کیا، اور 10 سال کی مدت میں، کم مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو یہ اللہ کی منشا تھی۔ لوگ زور لگاتے رہے، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے امیر رئیس لوگ زور لگاتے رہے کہ کسی طرح سے ان کو ختم کیا جائے، اسلام کو یہیں تک محدود رکھا جائے، یہیں سے ختم کیا جائے، لیکن شاعر کہتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو کسی کے چاہنے سے، کسی انسان کے بگاڑنے سے کسی کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں بات رکھ لیں۔ اگر آپ کی کوئی برائی کر رہا ہے، کرنے دیں، آپ کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، دینے دیں۔ آپ کیا ہے، آپ سے بڑے بڑے بزرگان دین جو گزرے ہیں، لوگوں نے ان کو تک نہیں چھوڑا ہے، تو پھر ہم اور آپ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں؟ اولیاء اللہ کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، انبیاء کرام کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے؟ تو لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، اور جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ یہ جو نیچ حرکت ہے کہ لوگوں کی برائیاں کرنا، لوگوں کے بارے میں برا چاہنا، لوگوں کی ٹانگیں پکڑ کے کھینچنا، ایک دوسرے میں لڑانا، ایک دوسرے کو جھگڑا لگانا، ایک دوسرے کی غیبت چغلی کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان ایسا کرنے والا اگر مسلمان ہے تو اسے اپنی زندگی پر افسوس ہونا چاہیے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والا نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ یہاں بھی ذلیل و خوار ہوگا، مرنے کے بعد قبر میں بھی اسے عذاب ہوگا، اور میدان محشر میں بھی وہ رسوا ہوگا۔ اور اگر کوئی آپ کی برائی کرے، آپ کی ہجو کرے، آپ کی جو ہے عیب جوئی کرے، آپ کو تکلیف دے، آپ کو گالی دے، آپ کو برا بھلا کہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
लोगों ने तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गालियां दी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने मजनू तक कहा, माअल्लाह पागल तक कहा। लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबस मजबूर तक कहा। लेकिन आपने सुना होगा कि कभी भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलटकर उनका जवाब नहीं दिया। ताइफ की सरजमीन पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने जुल्म हुए, पत्थरों की बारिश हुई, आपका जिस्म मुनव्वर लहू लुहान हो गया खून से। चलते थे तो जूतियों में खून इतना भरा हुआ था कि पैर जब बाहर आता और बाहर आने के बाद जब एड़ी अंदर जाती जूती में तो खून जो है बाहर फुवारे की तरह निकलता था। इतना खून आपके जिस्म मुनव्वर से बहा था। लोगों ने पत्थरों की बारिश की थी। सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह, तो इन लोगों के हक में, ताइफ वालों के हक में बद्दुआ कर दें ताकि अल्लाह ताला इन्हें हिलाक कर दे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन भी हाथों को बुलंद किया था, लेकिन बद्दुआ नहीं की, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमा और इन्हें सलामत रख, इन्हें बाकरामत सलामत रख। लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये तो बद्दुआ करने की जगह थी, आपने इन्हें दुआ क्यों दी? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ कि आज अगर ये ईमान नहीं लाते तो क्या हुआ, इनकी आने वाली नस्ल जरूर ईमान लाएगी और इस्लाम में दाखिल होगी, कलमा पढ़ करके मजहब इस्लाम को कबूल करेगी। और अगर आज यही मिट गए तो फिर इनकी नस्ल यहीं से खत्म हो जाएगी। लिहाजा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के बारे में पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया, किसी को बुरा भला नहीं कहा। तो इससे हमें दर्स लेना चाहिए कि अगर कोई हमारी बुराई चाहता है तो चाहने से, उसके चाहने से कुछ नहीं होने वाला। उसके चाहने से हमारा एक बाल भी खराब नहीं हो सकता, हमारी कोई चीज, जिस्म का एक अज़्व भी खराब नहीं हो सकता इसी इंसान के चाहने से। बस ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी रहे, अल्लाह खुश रहे। और अगर हो सके कोई आपकी बुराई करता हो, कोई आपकी हिजू करता हो, तो आप उससे नफरत न करें बल्कि उससे प्यार किया करें। और ये सोचें कि लोग हमारी बुराई करते हैं, करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है, अल्लाह हमारा हामियों की दुआर है। अल्लाह जब हमारे साथ है तो दुनिया के बिगाड़ने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हमारे और आपके इमाम हैं मसलक के, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। लोग जो है, कुछ लोग होते हैं जो गमों में शरीक होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो परेशानियों का, गमों का, मुसीबतों का मजा लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मजा लेते हैं। लोग दिल ही दिल में मजा लेते हैं। आज हमारे माशरे में भी ये हाल है। कुछ लोग हमारे चाहने वाले हैं, कुछ लोग हमारे गमखार हैं, हमारे गमों में शरीक होने वाले हैं, तो कुछ लोग जो है हमारे गमों का मजा लेने वाले भी होते हैं। ऐसे लोग होते हैं। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया और अभी 3 दिन हुए थे शायद, और इमाम आज़म अबू हनीफा का गम अभी हल्का नहीं हुआ था, उसी गम में थे और अपने मुरीदीन के साथ घर से बाहर निकले तो एक उनका बुरा चाहने वाला, इमाम आज़म अबू हनीफा का बुरा चाहने वाला, उसने जो है हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा से कहा कि ऐ इमाम आज़म, ऐ नोमान, मैंने सुना कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया। तो कहा कि हाँ इंतकाल हो गया। वो दे दिए, मजा लेने के लिए वो ये बातें पूछ रहा है, उनकी हौसला अफजाई और उनकी दिलजोई के लिए नहीं, मजा लेने के लिए कह रहा है कि नोमान, मैंने सुना तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया। तो इमाम आज़म ने कहा कि हाँ 3 दिन पहले इंतकाल हो गया। तो कहा कि तुम्हारी वालदा तो बेवा हो गई? कहा कि हाँ। तो उसने एक ऐसी बात कही, हज़रात मोहतरम हम और आप होते तो वहीं पर लाठी डंडा जो भी होता हम खींच देते और उसका मार करके सर फाड़ देते। उसने कहा कि नोमान, अगर तुम्हारे वालिद का जब इंतकाल हो ही गया है तो ऐसा करो, अपनी माँ का निकाह मेरे साथ पढ़ा दो। इतनी बड़ी बात उस शख्स ने कही कि अपनी माँ का निकाह मेरे साथ पढ़ा दो, कह दो अपनी तुम्हारी माँ मेरे साथ निकाह करा। अगर हम और आप होते तो ये गम, बाप के जाने का गम अभी हल्का नहीं हुआ, ऊपर से लोग उल्टी सीधी बातें अगर सुनाए तो भला किसको बर्दाश्त हो। लेकिन वो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़े लिखे थे, आलिम दीन थे, आशिक रसूल थे। उन्होंने जब ये बात सुनी तो गुस्सा नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कहा
मुरीद जो थे उनके साथ में चलने वाले, वो लोग तो गुस्सा हो गए और खड़े हो गए उसको मारने के लिए। इमाम आजम ने उन्हें पकड़ा और बैठाया, कहा कि ठहरो। उसने कोई गलत बात नहीं कही, उसने बिल्कुल सही बात और हक बात कही, जो जायज बात है उसने वो कही है। ये भी शादी कर सकता है, मेरी माँ भी शादी कर सकती है, इसने कोई गलत बात नहीं कही। इसने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है और इसने कोई गलत बात नहीं कही। इमाम आजम ने उस शख्स से कहा कि अगर तुम्हारी मर्जी है मेरी वालिदा से निकाह करने का तो ठीक है, मैं अपनी वालिदा से पूछ लूंगा उसकी क्या राय है, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। उस शख्स ने जब इमाम आजम का जवाब सुना तो हैरान रह गया। उसको तो मजा लेना था कि इमाम आजम की हरकत देखूं, इमाम आजम का रिएक्शन देखूं कि इस बात के बाद उनका रिएक्शन क्या होता है, उनकी कैफियत क्या होती है। वो ये सोच रहा था कि इमाम आजम अबू हनीफा भड़क जाएंगे और नाराज हो जाएंगे, मारने के लिए दौड़ेंगे, मैं उनका मजा लूंगा। लेकिन इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं अपनी माँ से पूछ लूं, इसके बारे में वही मालिक है, तब मैं तुम्हें बताता हूँ। जब ये बात कही तो वो शख्स हज़रात मोहतरम जो बुरा चाहने वाला था इमाम आजम के कदमों में गिर गया और कहने लगा कि नौमान, मैं नहीं जानता था कि तू इतना बड़ा साबिर है, तू इतना बड़ा सब्र का पैकर है, मैं तो तेरा मजा लेना चाहता था, लेकिन तू है कि सब्र के दामन को हाथ से नहीं छोड़ता है। लिहाजा आज के बाद से मैं तौबा करता हूँ कि कभी तेरा बुरा नहीं चाहूंगा और जब भी रहूंगा तेरे साथ रहूंगा, तेरे गमों में साथ रहूंगा, तेरे खुशियों में साथ रहूंगा। उस शख्स ने तौबा की, उस दिन से इमाम आजम का साथी बन गया, दोस्त बन गया। इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम आजम है, हमारे मसलक के इमाम हैं। उन्होंने ये तर्ज अमल करके बताया कि अगर कोई चाहे कोई भी कितना भी बुरा कहने वाला हो, आप उसकी बातों का बुरा ना माने। वो भले बुरा कह रहा हो, लेकिन हम जो है अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं। अल्लाह अपने नेक बंदों के साथ हमेशा रहा करता है, अपने बुरे बंदों के साथ हमेशा रहा करता है। अल्लाह जब गैरों को नहीं छोड़ता, गैरों को रोजी देता है, गैरों को जिंदगी अल्लाह अता करता है, तो फिर हम तो गुलाम मुस्तफा हैं, हमको अल्लाह ताला कहां से अकेला छोड़ देगा। हमें अल्लाह ताला अकेला नहीं छोड़ता और कभी भी हम अल्लाह से दूर नहीं होते। अल्लाह हमेशा अपनी निगहबानी में हमें रखता है। अल्लाह कभी दूर अल्लाह पर भरोसा हो तो हज़रात मोहतरम फिर पहाड़ को राई बना सकते हैं और राई को पहाड़ बना सकते हैं। एक कतरे को समंदर बना सकते हैं अगर अल्लाह पर भरोसा हो, और समंदर को चाहे तो खुश्क एक मिट्टी बना सकते हैं अगर अल्लाह पर भरोसा हो। यकीनी तौर पर भरोसा हो कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, हमारा हामी और नासिर है, मददगार है, तो अल्लाह ताला वाकई में हमारा मददगार हो जाएगा। अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। मैं आपको एक वाक़या इसको सुनाऊं कि तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा इस कदर हो, अल्लाह पर इस कदर यकीन हो कि उसके सिवा फिर कुछ न सूझे। चाहे लोग आपको डंडा मारे, चाहे लोग आपका सर काट दें, बस ये दिमाग में हो, ज़हन में हो कि अल्लाह मेरे साथ है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं सफर कर रहा था, रास्ते में थकावट हुई तो एक दरख्त के नीचे मैं बैठ गया साए में, और साए में बैठ करके आराम करने लगा टेक लगाकर। तो क्या देखता हूँ कि सामने एक दरख्त है और उस दरख्त पर एक परिंदा है जिसका नाम फाख्ता है। वो परिंदा अपने घोंसले में बैठा हुआ है, अंडा उसने दिया है और उस अंडे के ऊपर बैठा हुआ है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने उसे देखा, मैं आराम कर रहा हूँ, वो फाख्ता बैठा हुआ है। इतने में एक शिकारी आया, शिकार करने वाला, चिड़ियों का शिकार करने वाला। उसने आकर के देखा, इधर उधर नजर दौड़ाई, फाख्ते पर उसकी नजर पड़ गई, और जब फाख्ते पर नजर पड़ी तो बुजुर्ग फरमाते उसने तुरकस से तीर निकाला और कमान में लगाया। लगाने के बाद जैसे ही परिंदे की तरफ तीर का निशाना दिया, परिंदे ने देख लिया, परिंदे की नजर भी देख लिया उसने, और जब उसने देख लिया तो फौरन वहां से उड़ा, अपनी जान बचाने के लिए वहां से उड़ा। और उड़ने के बाद जैसे ही पेड़ के बाहर, पेड़ के ऊपर, पेड़ को पार करके ऊपर की तरफ जाता है तो क्या देखता है कि ऊपर एक शकरा, एक बाज मंडरा रहा है और उसकी नजर इसी फाख्ते पर है कि ये बाहर निकले तो मैं इस पर झपटा मारूं और इसे अपना शिकार बना लूं। परिंदा परेशान हो गया,
कि अगर पेड़ पर जाऊं, पेड़ के नीचे जाऊं तो शिकारी तीर लेकर के तैयार है, और पेड़ के बाहर उड़ करके बाहर जाऊं फजा में तो ऊपर शकराबाज मेरा इंतजार कर रहा है। यानी दोनों तरफ मौत है, न इधर रह सकता हूँ न उधर रह सकता हूँ, न नीचे रह सकता हूँ न ऊपर रह सकता हूँ, आखिर करूँ तो क्या करूँ। खैर उसने जब देखा कि ऊपर बाज उड़ रहा है और उसकी भी नजर इधर है, दोनों तरफ मौत ही मौत उसे नजर आई, तो उसने जो है पेड़ पर उसने पेड़ पर बैठा और थोड़ा सा अंदर गया, छुप गया, शकरे की नजर से, बाज की नजर से छुपा और शिकारी की नजर से भी छुपा। और हज़रात मोहतरम फिर उस वक्त उसने वो काम किया जो हम और आप नहीं करते। उसने उस वक्त वो काम किया जो हम और आप नहीं करते, जो हमें और आपको करना चाहिए। वो परिंदे, वो जानवर, सारे के सारे परिंदे युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हर जमीन आसमान के जर्रे जर्रे अल्लाह की तस्बीहात बयान करते हैं, अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं, पाकी बयान करते हैं। सिर्फ इंसान और जिन्नात को आजादी है कि वो चाहे तो बोले पाकी, चाहे तो ना बोले, चाहे तो फर्ज अदा करें, चाहे तो फर्ज अदा ना करें। अगर अदा करें तो खुशकिस्मती, ना अदा करें तो उनकी बदकिस्मती। ये इंसानों जिन्नातों के लिए आजादी है। बाकी चाहे जानवर हो, परिंद हो, शरातुल अर्द हो, चाहे वो नबातात हो, जमादात हो, हैवानात हो, कोई भी मखलूक हो, हर मखलूक अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है, अल्लाह की तारीफ करती है, अल्लाह की इबादत करती है। वो परिंदा भी अल्लाह की इबादत करता था। उसने भी उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला को याद किया, अल्लाह को पुकारा और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौ लगाई और कहा कि या अल्लाह, नीचे भी मौत है, ऊपर भी मौत है, अब मेरी जान तेरे हवाले है, तेरे कब्ज़ो इख्तियार में है, या अल्लाह तू मेरी जान को बचा ले। जब उसने सदा दी, अल्लाह को पुकारा, अल्लाह पर भरोसा करके अल्लाह को पुकारा उस परिंदे ने, हज़रात मोहतरम फिर अल्लाह भी अपने मांगने वाले बंदों को कभी मायूस नहीं करता। कहा अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, गोया अल्लाह ने फरमाया कि फाख्ते परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तूने मेरी मदद मांग ली है तो ये दो मौत किया। अगर पूरी दुनिया वाले भी चाहे तुझे मारना तो आज तेरी जान को कोई नहीं ले सकता, इसलिए कि तूने मेरी पनाह ली है, आज तेरी रूह कोई नहीं निकाल सकता। परिंदे को भरोसा हो गया अल्लाह ताला की जात पर, पेड़ पर बैठा रहा। शिकारी की नजर पड़ी जब उस परिंदे पर, फाख्ते पर, तो उसने दोबारा तीर जो है खींचा, दोबारा तीर कमान में लगाया और खींचा। शिकारी ने जब तीर खींचा तो हज़रात मोहतरम आधा तीर खींच करके उसने छोड़ा ही था कि अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत हुई, एक सांप निकला, जाहिर हुआ, नमदार हुआ और शिकारी के पैर में उसने डंक मारा। जब उसने डंक मारा तो उसके दर्द से, उसकी तकलीफ से, उस शिकारी का तीर जो परिंदे की तरफ जाने वाला था वो दर्द से ऐसा कराहा कि उसका हाथ ऊपर हुआ और तीर कमान से निकला जाकर के सीधा बाज के सीने में प्रवस्त हो गया। उधर वो मौत जो इसे इंतजार कर रही थी इस फाख्ते का, इधर ये मौत जो इस फाख्ते का इंतजार कर रही थी, आज मौत को अल्लाह तबारक व तआला ने मौत दे दी और जिसे मौत आने वाली थी अल्लाह ने उस फाख्ते को जिंदगी अता की। अल्लाह पर अगर भरोसा हो हज़रात मोहतरम तो अल्लाह हमारा हामी और नासिर हर जगह होता है, हर जगह। बस शर्त ये है कि अल्लाह पर बिल्कुल 100% अल्लाह पर भरोसा हो कि हाँ अल्लाह हमारा हामी और नासिर है, हर जगह हमारा अल्लाह मददगार है। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, अल्लाह तबारक व तआला कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता है, बल्कि हमेशा अपने बंदों के साथ रहता है। हम तो आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, हुजूर के चाहने वाले हैं, हम तो तमाम औलिया के चाहने वाले हैं। जब अल्लाह अपने दुश्मनों को तन्हा नहीं छोड़ता, जब अल्लाह अपने दुश्मनों को जिंदगी और रोजी अता करता है तो फिर अल्लाह ताला के हम तो बंदे हैं, हम तो उसके महबूब के उम्मती हैं, फिर अल्लाह हमें कैसे तन्हा छोड़ सकता है, कैसे अल्लाह ताला हमें अकेला छोड़ सकता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने चाहने वालों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों की इज्जतों को पामाल करते हैं, दूसरों के वक़ार को पामाल करते हैं, उन्हें होशियार होना चाहिए, उन्हें खबरदार होना चाहिए कि ये हरकत जो है न दुनिया में उन्हें खुशगवार रखेगी न आखिरत में कामयाब रखेगी, बल्कि यहाँ भी ज़लील व ख़ार होंगे, वहाँ भी जहन्नम के हकदार होंगे। ऐसी हरकतें न किया करें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखें। हमेशा अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके साथ है। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं इसी तरह का।
दिल्ली का वाकया है, दिल्ली की सरजमीन का, और ये वाकया है पीराने पीर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा हैं, और हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद हैं। और उनके मुरीद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, उनके मुरीद हजरत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने इनको खिलाफत से नवाजा। नवाजने के बाद इन्हें दिल्ली की हुकूमत अता की, दिल्ली भेजा और कहा कि मैं अजमेर में रहता हूँ, तुम दिल्ली में जाओ और वहाँ जाकर के दीन इस्लाम की तबलीग करो। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आए दिल्ली। दिल्ली का जो बादशाह थे वो हजरत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो बादशाह थे उस वक्त दिल्ली के। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला दिल्ली में आए और आने के बाद दीन इस्लाम की तबलीग करना शुरू किया। लोग इनसे मोहब्बत भी करने लगे। इनकी शोहरत धीरे धीरे पूरी दिल्ली सरजमीन पर होने लगी। दिल्ली के पूरे पूर्व जवार में, दिल्ली के गोशे गोशे में इनकी शोहरत होने लगी। और सबसे बड़ी अहम बात यह थी कि दिल्ली का जो बादशाह था सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, वो खुद भी इनका मुरीद हो गया था, खुद भी इनके हाथ पर बैत हो चुका था, अपना हाथ दे चुका था। जब दिल्ली का बादशाह ही मुरीद हो गया हो तो भला दिल्ली के अवाम क्यों ना मुरीद हो। धीरे धीरे आपकी शोहरत पूरे दिल्ली में फैलने लगी, होने लगी। लोगों की जबान पर आपका नाम मुबारक जपने लगा, चलने लगा। ये जब शोहरत बढ़ी, ये जब नाम हुआ आपका पूरी दिल्ली की सरजमीन पर, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ, कुछ लोगों को तकलीफ हुई और लोगों ने देखा कि इनका नाम और इनका दीन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो लोगों ने जो है अब इसमें साजिशें शुरू की और फिर इनकी इज्जत को पामाल करना चाहा, इनकी इज्जत को तार-तार करना चाहा। और कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने मिलकर साजिश की और एक औरत को खरीदा और 3-4 मुसलमानों को खरीदा, पैसे दे करके खरीदा। और खरीदने के बाद, एक औरत को खरीदने के बाद उससे कहा कि तुम ये अपने ऊपर इल्जाम लगाना और अपनी इज्जत को तार-तार करके, अपनी इज्जत को पामाल करके ये इल्जाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर लगाना कि माज़अल्लाह उन्होंने तुम्हारे साथ जो है बदकारी की है और उन्हीं का बेटा तुम्हारी गोद में, उन्हीं का बच्चा तुम्हारी गोद में। गवाही के लिए अगर कोई मांगे तो हम मुसलमानों को खरीद लेते हैं। 3-4 मुसलमानों को उन लोगों ने खरीदा। गवाही के तौर पर खरीदने के बाद हज़रात मोहतरम वो औरत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जो कि खुद मुरीद हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, दरबार में बैठा हुआ सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश दरबार में बैठ करके लोगों की बातें फरियादें सुन रहा है। उसी वक्त एक औरत जो है चिल्लाती हुई, रोती हुई, सीना पीटती हुई, बाल जो है बिखेरे हुए चिल्लाती हुई आई और दरबार में हाजिर हो गई। हाजिर होने के बाद कहने लगी कि बादशाह सलामत, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरी इज्जत तार-तार हो गई। बादशाह ने कहा कि बात क्या है बताओ। तो कहा कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अगर तुम सुनोगे तो तुम्हें भी यकीन नहीं होगा। बादशाह ने कहा कि बताओ तो सही बात क्या है। कहा कि अगर तुम सुन सकते हो तो सुनो, वरना मुझे यकीन है कि मैं जो बात बताऊंगी तुम उल्टा मुझ पर बरसोगे, तुम्हें यकीन नहीं होगा। कहा कि बताओ तो सही बात क्या है, तुम्हारे साथ कैसी नाइंसाफी हुई है। तो उस औरत ने कहा, उस बदकार औरत ने कहा कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, तुम जिसे अपना पीर मानते हो, जिसकी शोहरत आज पूरी दिल्ली में है, उसी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मेरे साथ बदकारी की है, मेरे साथ ज़ना किया है। और जो मेरी गोद में ये बच्चा है, ये उन्हीं के खून का ये बच्चा है, ये उन्हीं की औलाद है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने जब सुना तो हक्का बक्का रह गए, हैरत में डूब गए। ये पीरो मुर्शिद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बात थी। अगर किसी और की बात होती तो फौरन तलवार निकालते और फैसला वहीं पर कर देते, लेकिन हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बात थी, उनके पीरो मुर्शिद की बात थी। खुद भी परेशान हो गए कि क्या करूं।
انہوں نے کہا کہ عورت تمہیں پتا ہے کیا کہہ رہی ہو, تجھے معلوم ہے کہ کس پر الزام لگا رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ بادشاہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم کو اگر بتاؤں گی تمہیں یقین نہیں ہوگا, لیکن میں جانتی تھی اس لیے میں نہیں بتا رہی تھی. تو اس بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس بات کے تمہارے پاس گواہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی گواہی ہو تو مانی جائے. عورت نے کہا کہ ہاں میرے پاس وہ فلاں فلاں گواہ ہے. ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضرات محترم اس مجمع میں سے گواہی دینے کے لیے اللہ کے ایک نیک ولی کی طرف سے جھوٹی گواہی دینے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ بکے ہوئے مسلمان کھڑے ہوئے, بکے ہوئے جو ایمان والے کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کر کے ان لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں بادشاہ سلامت, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رات کے وقت اپنے مریدوں کو سامنے والے دروازے سے نکالتے ہیں, حجرے کے سامنے والے دروازے سے باہر نکالتے ہیں اور پیچھے کے دروازے سے اس عورت کو اندر بلاتے ہیں. یہ انہی کی اولاد ہے. اس کی گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کی اولاد ہے, انہی کا بیٹا ہے. حضرات محترم حضرت سلطان شمس الدین التمش نے جب یہ سنا تو اب تو انصاف کرنا تھا. گواہی بھی مل گئی اور مدعی بھی وہاں پر ہے, گواہ بھی مل گئے, الزام بھی جو ہے واقع ہو گیا. اب حضرات محترم حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت سلطان شمس الدین التمش بادشاہ دہلی نے خبر بھجوائی اور کہا کہ جاؤ بلا کر کے لاؤ. یہ بات بھی یہ غلط الزام جو آپ پر لگے تھے, یہ بات آپ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک پہنچ گئی کہ مجھ پر جو ہے الزام لگا ہوا ہے, اور ایسا الزام لگا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں سوچنا جو ہے انسان کے لیے ناگوار گزرتا ہے. ایسا الزام لگا ہوا ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بڑھاپے کا وقت تھا, بوڑھے ہو چکے تھے, لاٹھی لے کر کے چلا پھرا کرتے تھے. اس وقت کچھ لوگ ان کے مرید گئے, کہا حضور چلیے دربار میں پیشی ہے, ایک عورت نے آپ پر الزام لگایا ہے, زنا کا الزام لگایا ہے, بدکاری کا الزام لگایا ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں, اپنی لاٹھی کا سہارا لیتے ہیں, ٹیک لگا کر کے دھیرے دھیرے جو ہے بادشاہ کے محل کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب محل کے اندر داخل ہوتے ہیں, دربار میں جیسے ہی داخل ہوتے حضرات محترم وہ پیر و مرشد, پوری دلی کا پیر و مرشد, بادشاہ کا پیر و مرشد جب دربار میں داخل ہوا تو حضرات محترم جتنی عوام بیٹھی ہوئی تھی سارے کی ساری عوام جو ان کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی ہے. بادشاہ خود بھی کھڑا ہو جاتا ہے استقبال میں کہ پیر و مرشد آ گئے. جب سب لوگ کھڑے ہونے لگے تو آپ نے فرمایا, قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ لوگوں آج میری تعظیم نہ کرو, آج میری عزت و تکریم نہ کرو, کیونکہ آج میں تمہارا پیر بن کر نہیں بلکہ تمہارا ملزم بن کر کے آیا ہوں, تمہارا مجرم بن کر کے آیا ہوں. لہذا آج میری تعظیم نہ کرو بلکہ آج انصاف کرو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں بادشاہ کے سامنے. بادشاہ نے ساری باتیں بتائی کہ حضور ایسی ایسی باتیں ہیں, آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی گئی ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ شمس الدین التمش تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ حضور کیا بتاؤں, مجھے تو انصاف کرنا ہے, اب میں کیا کر سکتا ہوں, میں مجبور ہوں, جیسا آپ کا حکم ہو. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دو, میں بھی تو صفائی پیش کروں. مجھ پر جو غلط الزام لگا ہوا ہے مجھے بھی صفائی کرنے کے لیے, اس پر صفائی دینے کے لیے مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے. حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی بات مانی اور مجمع کو برخاست کیا, عدالت کو برخاست کیا اور 3 دن کی مہلت, 3 دن کا وقت دیا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر آپ نکلے دربار سے اور گئے اپنے حجرے میں اور جا کر کے سر کو سجدے میں رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر کے دعائیں کرنے لگے, رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں کرنے لگے, رونے لگے اور اپنے پیر و مرشد کو بھی یاد کرنے لگے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی جو کہ اس وقت باحیات تھے, آپ بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کے مرید قطب الدین بختیار کاکی بھی بوڑھے ہو چکے تھے.
آپ جو ہے باحیات تھے حضرت خواجہ غریب نواز اور اجمیر کی زمین سرزمین پر تھے اور آپ دہلی کی سرزمین پر تھے. آپ جو ہے روتے روتے اپنے پیر و مرشد کو بھی پکارتے ہیں کہ حضور آج میری زندگی آج میری عزت تار تار ہونے والی ہے. یہی سوچ کر کے رو رہے ہیں کہ کیا کروں کیسے میں اپنی صفائی پیش کروں. حضرات محترم 3 دن کا وقت اس لیے مانگ کر لائے تھے کہ کہیں سے کوئی راستہ نکل جائے, کہیں سے کوئی مدد آ جائے, لیکن انہیں کچھ سوچتا نہیں تھا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. اسی غم میں روتے روتے آنکھیں حضرات محترم لال ہو گئی, آنسو اتنے گرے کہ داڑھی پھیک گئے اور اسی طرح روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی, نیند آ گئی. جب نیند آئی آنکھ بند ہوئی لیکن دل بیدار ہوا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لائے ہوئے ہیں اور اپنے مرید سے کہتے ہیں قطب الدین پریشان کیوں ہو رہا ہے, کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا کہ پیر و مرشد حضور بات یہ ہے کہ مجھ پر الزام لگا ہوا ہے اور غلط الزام لگا ہوا ہے, جو میں نے گناہ نہیں کیا ہے وہ مجھ پر گناہ کا الزام لگا ہوا ہے. حضور میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. مجھے تو آپ نے یہاں بھیجا تھا دین کی دعوت کے لیے, دین اسلام کے کو بڑھانے کے لیے, دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. مجھے آپ نے بتایا تھا کہ کبھی بھوکا رہنا پڑے گا, کبھی پیاسا رہنا پڑے گا, کبھی رات کو سونے کو نہیں ملے گا, کبھی لوگ تمہیں گالیاں دیں گے, کبھی تمہیں لوگ برا بھلا کہیں گے. لیکن حضور آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ لوگ مجھ پر زنا کا بھی الزام لگائیں گے, لوگ مسلمان ہو کر کے میری طرف سے جھوٹی گواہی دیں گے. حضور آپ نے مجھے یہ تو نہیں بتایا تھا. حضور خواجہ غریب نواز خواب میں موجود ہیں, تشریف فرما ہے. فرمایا بیٹے گھبرانے کی بات نہیں ہے, جاؤ بادشاہ سلطان شمس الدین التمش سے کہہ دو کہ کچھ دن کا اور وقت دے دے, کچھ دن کی اور مہلت دے دے. میں آؤں گا اور اتنے دنوں میں 3 دنوں میں آؤں گا اور آ کر کے میں تمہاری طرف سے فیصلہ کروں گا, آ کر کے میں اس معاملے کو سمجھوں گا اور اس معاملے کو لوگوں کے سامنے رکھوں گا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مہلت مانگی اور پھر حضرات محترم کچھ دن کی مہلت مانگی. مانگنے کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی. کچھ دن کی مہلت ملی اور وہ دن جب آخری دن آیا جس دن کی مہلت تھی حضرات محترم, اب جب وہ دن آ گیا دربار لگا اور لوگ تماشائی بن کر کے حاضر ہوئے جن کو تماشا دیکھنا تھا اور جن کو کرامتیں دیکھنی تھی, جن کو اللہ کے ولیوں کی کرامت دیکھنی تھی وہ کرامت دیکھنے آئے ہوئے تھے, اور جن کو تماشے دیکھنے تھے, جن کو اللہ کے ولی کی عزت کو تار تار کرنا تھا وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے. ان کے چاہنے والے بھی اور ان کے محبین اور ان کے ماننے والے, ان کے جاننے والے بھی آئے ہوئے تھے اور ان سے دشمنی کرنے والے, نفرت کرنے والے بھی آئے ہوئے تھے. دربار لگا ہوا ہے حضرات محترم. صبح سے لے کر کے دوپہر ہو گئی لیکن ابھی تک اجمیر سے آنے والا معین الدین اجمیری نہیں آیا. دوپہر سے انتظار کرتے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بار اجمیر کی طرف نگاہیں اٹھا رہے تھے, بار اس راستے کی طرف دیکھ رہے تھے جو راستہ اجمیر سے آ رہا تھا. بار اسی راستے پر ان کی نظر تھی کہ میرا پیر و مرشد آ جائے تو پھر مجھے کسی کا غم نہیں ہوگا, چاہے لوگ مجھ پر جتنے الزام لگائیں مجھے فکر نہیں ہوگی. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میرا پیر آ جائے گا پھر میں اس کے دامن میں چھپ جاؤں گا, پھر لوگ چاہے جو بھی کہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں, میرا پیر دیکھ لے گا. اسی امید میں بیٹھے ہوئے تھے, انتظار کر رہے تھے. دوپہر ہو گئی, دوپہر سے حضرات محترم عصر کا وقت آیا, عصر کی نماز پڑھی. اب سورج ڈھلنے لگا, سورج میں لالی آنے لگی, زوال کا وقت آیا اور جیسے سورج میں لالی پڑ رہی تھی قطب الدین بختیار کاکی کی گھبراہٹ اور دھڑکنیں اور تیز ہو رہی تھی کہ اگر اجمیر والا نہیں آیا, اگر میرا پیر و مرشد نہیں آیا تو میں اس بدنامی کے کنویں میں گر کر کے ہلاک ہو جاؤں گا اور یہ داغ کبھی بھی میرے پاک دامن سے مٹ نہیں سکے گا. اس لیے وہ گھبرا رہے تھے, رو رہے تھے, بلک رہے تھے, دل ہی دل میں گھبرا رہے تھے کہ اب تو سورج بھی ڈوبنے والا ہے, شام بھی ہونے والی ہے, اگر اجمیر والا نہیں آیا تو کیا ہوگا. یہی سوچ کر کے حضرت قطب الدین بختیار کاکی گھبرا رہے تھے, رو رہے تھے, دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی. سورج ڈوب گیا, مغرب کا وقت ہو گیا, مغرب کی نماز پڑھنے کی جماعت کھڑی ہوئی. آپ نے امامت فرمائی, آپ نے امامت کی, پیچھے
पीछे मुक्तदी नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत मोहतरम आस टूट चुकी थी हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कि अब जो है शाम हो गई, सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त हो गया, अब मेरा पीर लगता है नहीं आएगा, अब नहीं आएगा अजमेर वाला, अब मुझे बचाने नहीं आएगा। मगरिब की नमाज की जमात आपने कराई और जैसे ही आपने सलाम फेरा, दोनों तरफ जब सलाम फेरा तो क्या देखते हैं कि एक खड़ा होने वाला जिसकी एक रकात छूट गई थी वो मुक्तदी खड़ा हुआ, एक नमाजी खड़ा हुआ। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मुड़कर देखा तो जो खड़ा हो रहा था जिसकी एक रकात छूटी थी वो कोई और नहीं था बल्कि अजमेर का मोइनुद्दीन अजमेरी आ चुका था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आ चुके थे। जब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने देखा कि मेरा पीर आ गया है, मेरा मुर्शिद आ गया है, गरीब नवाज आ गया है, तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने एक लंबी सांस ली, एक सुकून की सांस ली, इत्मीनान की सांस ली। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने नमाज मुकम्मल की, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जाकर के अपने पीर और मुर्शिद के कदमों में गिर जाते हैं और रोने लगते हैं कदमों को पकड़ करके कि हुजूर आपने मुझे दिल्ली भेजा था, यहाँ के लोगों को सुधारने के लिए, दीन की तबलीग के लिए आपने भेजा था। हुजूर आपने भेजा था मुझे यहाँ रसूल अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, फरोग देने के लिए आपने मुझे भेजा था, शरीयत इस्लाम को फैलाने के लिए। लेकिन हुजूर मुझे आपने ये तो नहीं बताया था कि लोग मुझ पर कीचड़ भी उछालेंगे, लोग मेरी इज्जत को पामाल करेंगे, लोग मुझ पर बदकारी का इल्जाम लगाएंगे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जब ये बात सुनी, अपने मुरीद को झटका और उठा करके कहा कि खामोश रह, तू क्या है? अगर तुझ पर इल्जाम लगा है तो तू कौन सी हस्ती है? तुझे मालूम नहीं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी पर लोग तोहमत और ज़ना का इल्जाम लगा सकते हैं, जब नबी पर लोग ज़ना का इल्जाम लगा सकते हैं, तो तू किस खेत की मूली है? अगर तुझ पर लोगों ने इल्जाम लगाया तो कौन सी बड़ी बात हुई? हजरत ईसा की माँ हजरत मरियम पर जब लोग इल्जाम लगा सकते हैं तो तेरी क्या औकात है? खामोश रह। ये मुआशरा, ये लोग, ये दुनिया किसी का कभी भला नहीं चाहती है, जब भी चाहती है बुरा चाहती है। लेकिन याद रखना, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाया, लेकिन उसका सफाया और उसका इंसाफ अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर भी इल्जाम लगा था और उसका इंसाफ अल्लाह ने किया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से गवाही देने वाला कोई मुसलमान मर्द जवान नहीं था, बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से गवाही देने वाला एक नन्हा मुन्ना 2 महीने का बच्चा था, जिसने अल्लाह के हुक्म से गवाही दी थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कपड़ा पीछे से फटा होगा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है गुनहगार नहीं होंगे, बदकार नहीं होंगे, और अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कपड़ा आगे से फटा होगा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनहगार होंगे। इसलिए हजरत मोहतरम बच्चे ने बोला, बच्चे के बोलने पर देखा गया यूसुफ अलैहिस्सलाम का कपड़ा पीछे फटा हुआ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बरी हो गए गुनाहों से। मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा तो उन्हीं के बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि 3 दिन के थे, अभी महद में थे, और अल्लाह ने फरमाया, हजरत ईसा ने कहा, अल्लाह फरमाता काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानील किताब व जअलनी नबिय्या। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ लोगों, मैं अल्लाह की तरफ से नबी बनकर आया हूं और अल्लाह ने मुझे किताब अता की है। ये ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के थे, अल्लाह के हुक्म से बोल उठे और लोग जो मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा रहे थे, जब उन्होंने सुना बच्चे की ज़बानी तो खामोश हो गए। मरियम अलैहिस्सलाम पर जो लोग इल्जाम लगा रहे थे उनकी ज़बान पर ताले लग गए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, जो अंबिया पर तोहमतें लगा सकते हैं, जो बुजुर्गाने दीन पर तोहमतें लगा सकते हैं, वो तुम पर भी तोहमतें लगा सकते हैं, मुझ पर भी तोहमतें लगा सकते हैं। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मजमा बुलाओ, अदालत लगाओ, उस औरत को भी बुलाओ, गवाहों को भी बुलाओ, देखता हूं कि किसने मेरे कुतुबुद्दीन का दिल दुखाया है। देखो तो सही कि लोगों ने गवाही दी है, किसने मेरे मुरीद का दिल तोड़ा है, मैं भी तो जरा देखूं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीद को साथ लेते हैं। लेने के बाद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने पीर और मुर्शिद के साथ उनका हाथ पकड़ करके दोनों साथ साथ चल रहे हैं। पीर और मुर्शिद है लेकिन उम्र में दोनों बराबर हैं, दोनों जो है ज़ईफुल उम्र हैं, बूढ़े हो चुके हैं। दोनों जो है अपनी लाठी लेकर के सुल्तान शमसुद्दीन के दरबार की तरफ जाते हैं। दरबार लगा हुआ है, तमाशा देखने वाले लगे हुए हैं। आज जो है फैसले का दिन है, आज आखिरी दिन है, फैसला या तो आर होगा या पार होगा।
आज दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लोग इसी उम्मीद में आए हुए थे। दरबार लगा और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन हजरत गरीब नवाज ने फरमाया कि कौन वो औरत है जिसने मेरे कुतुबुद्दीन पर इल्जाम लगाया है, वो अपना मामला और अपना दावा दोबारा दोहराए, दोबारा वो बात कहे। हजरत मोहतरम उस औरत ने कहा कि तुम्हारा मुरीद, तुम्हारा ये कुतुबुद्दीन, इसने धीरे से मुझे अपनी कुटिया में, अपने हुजरे में बुलाया और ये जो बच्चा है ये उसी का बच्चा है, ये उसी की बदकारी का बच्चा है। हजरत मोहतरम हजरत कुतुबुद्दीन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बच्चे को देखा, उस औरत के गोद में है। हजरत मोहतरम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आ गए कि मेरा कुतुबुद्दीन जो कि ऐसा कर नहीं सकता है, इस पर ये गलत इल्जाम लगा हुआ है। गवाहान भी खड़े हो गए थे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि कौन गवाही दे रहा है, तो वही मुसलमान जो थे, वही 4-5 मुसलमान खड़े हुए और उन्होंने गवाही दी। हजरत मोहतरम उस वक्त भी खामोश नहीं रहे और गरीब नवाज के आने पर भी खामोश नहीं रहे, बल्कि अपनी गवाही पर अटल रहे। लेकिन हजरत गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि इल्जाम लगा हुआ है, आप गए उस औरत के करीब। जाने के बाद हजरत मोहतरम उस बच्चे की तरफ मुखातब होते हैं और होने के बाद अपना सर उसके बाद आसमान की तरफ उठाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम, जिस तरह से तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए एक नन्हे से बच्चे से गवाही दिलवाई थी, जिस तरह से तूने हजरत मरियम पर लगे हुए इल्जाम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से गवाही देकर के उन्हें इल्जाम से बरी किया था, या अल्लाह उसी तरह से ये तेरा हकीर बंदा तेरी बारगाह में अरीजा पेश करता है कि आज मेरे कुतुबुद्दीन, आज मेरे बेटे, आज मेरे मुरीद कुतुबुद्दीन की इज्जत की बात है। जिस तरह यूसुफ के लिए छोटा बच्चा बोला था, मरियम के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोले थे, आज मेरे कुतुबुद्दीन के लिए भी इस बच्चे से गवाही दिलवा दे, इसी बच्चे से गवाही दिलवा दे, ताकि आज जो फैसला हो जाए कि मेरा कुतुबुद्दीन सही है या गलत है, इस पर जो इल्जाम लगा हुआ है वो सही इल्जाम है या गलत इल्जाम है। हजरत मोहतरम इतनी दुआ करने के बाद आप खामोश हो गए, बच्चे को अपनी गोद में लिया हजरत मोहतरम और फिर बच्चे को हरकत दी और बच्चे से पूछने लगे कि बेटा तू बता, ये तेरी माँ जो कह रही है क्या ये बात सही है, क्या तू खून मेरे कुतुबुद्दीन का है, क्या तू औलाद मेरे कुतुबुद्दीन की है, क्या तू बेटा मेरे कुतुबुद्दीन का है या किसी और का खून है। हजरत मोहतरम ने जितना पूछा उस बच्चे से तो अल्लाह की मशीयत ये हुई कि बच्चे की जबान में गोयाई आई, अल्लाह ने बोलने की ताकत दी और वो बच्चा 2 महीने का उठ करके गोद में बैठ गया हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के। बैठने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को जबान से कहा अस्सलामु अलैकुम। हजरत गरीब नवाज ने जवाब दिया और जवाब देने के बाद कहा कि बेटा ये बता कि तू किसका खून है, तू किसकी औलाद है। उस बच्चे ने 2 महीने के बच्चे ने अल्लाह के फजल व करम से उसी भरे मजमे में बोला और बताया कि जिस पर इल्जाम लगा हुआ है वो मैं उसका बेटा नहीं हूँ, वो मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप वो बैठा हुआ है दूर, मैं उसका खून हूँ, मैं उसकी नाजायज औलाद हूँ। ये मेरी माँ हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर गलत इल्जाम लगाती है। इतना कहने के बाद वो बच्चा खामोश हुआ और फिर गोद में लेट गया। हजरत मोहतरम जब ये गवाही मिल गई, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने गवाही दिलवाई तो वहीं पर मामला साफ हो गया। जितने लोगों ने गवाही दी थी गलत इल्जाम लगा करके, जिस औरत ने इल्जाम लगाया था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने फौरन उन लोगों को कत्ल का हुक्म दिया, उन्हें कत्ल किया और कत्ल करने के बाद हजरत मोहतरम मजलिस को बर्खास्त किया, अदालत को खत्म किया। अब हजरत मोहतरम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने मुरीद कुतुबुद्दीन के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा, बाजू से पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा कि चल कुतुबुद्दीन अब तेरा दिल्ली में कोई काम नहीं, चल मेरे साथ मेरे अजमेर में रहना। लेकर के जब चलने लगे तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश दौड़ करके आगे से आए और कदमों में गिर गए और कहने लगे कि हुजूर मेरे मुरीद मेरे पीर व मुर्शिद को ना लेकर के जाइए। तो आपने कहा क्यों ना लेकर के जाऊं, मैंने इसे यहाँ भेजा था कि ये दीन का काम करेगा, तुम्हारी भलाई चाहेगा, तुम्हें नेक रास्ते पर लाएगा, तुम्हें बुरी बातों से रोक कर जहन्नम से दूर करेगा। और तुम लोग हो कि मेरे कुतुबुद्दीन पर गलत इल्जाम लगा रहे हो, पैसों पर बिक करके तुम लोग गवाही दे रहे हो, झूठी गवाहियां दे रहे हो। मैं अपने कुतुबुद्दीन बेटे को तुम्हारे हवाले अब नहीं करूंगा, मैं इसे अपने साथ लेकर के जाऊंगा। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कदमों से लिपट गए और भी लोग जो है रास्ते में खड़े बैठ गए और कदमों से लिपट गए कि हुजूर आइंदा ऐसा नहीं होगा, अगर ये चले गए दिल्ली की सरजमीन से तो फिर इस्लाम
का बोलबाला कैसे होगा, इस्लाम की रोशनी फिर आगे कैसे बढ़ेगी। हुजूर आइंदा मैं ख्याल रखूंगा कि आप पर कोई भी इल्जाम न लगे, आपके मुरीद पर कोई इल्जाम नहीं लगेगा। हजरत ख्वाजा कुतुब गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने छोड़ा और छोड़ने के बाद फरमाया, कहा कि बेटा जा, आज के बाद से मैं कहता हूँ कि आज के बाद तेरी इज्जत पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकेगा, तेरी इज्जत को कोई छाप नहीं सकेगा, आंख तक नहीं उठा सकेगा। जा बेटा तू दिल्ली की सरजमीन पर रहकर दीन का बोलबाला कर, लोगों को सीधे रास्ते पर ला और दीन इस्लाम की तरक्की में तू अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर गुजार दे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने वहीं पर अपनी पूरी जिंदगी गुजारी और आज भी आपका मज़ार उसी दिल्ली की सरजमीन पर मौजूद है। हज़रात मोहतरम, कहने का मतलब ये है कि अगर वाकई अल्लाह पर भरोसा हो तो फिर लोगों के बुरा चाहने से किसी का कुछ नहीं होता। वह तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ही है जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। बस शर्त ये है कि अल्लाह पर भरोसा हो, अल्लाह पर यकीन हो। अल्लाह हमें और आपको सुनने से ज्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।